Good morning, students. In a previous lecture, we have seen how Hamming code is working. Now, we will see new technique, that is CRC, that is cyclic redundancy check. Okay, so it is used for error detection and correction. So here, how error is detected. So here a message format is given to us. This is our original message, and here parity bits are appended at the end of message. Here one example is given to us. So here if a data is 1 0 0 0 0 0 0. Yes, so here number of ones is 1. So here to convert even parity, here we are added 1 at the end of message, that is 1. Yes, here number of ones are 1 2 3 4 5 and 6. So here number are number of ones are in a even form. So here we are added 0. So here this technique is useful for detecting odd number of errors. The probability of detection is 50%. Hamming code distance for parity is 2, so it can detect a single bit errors. So to detect d-bit errors requiring having Hamming distance of at least d plus 1 bits. Now we will see how CRC is working. See here, this is CRC or polynomial code. Yes, so here this is example 11000. Yes, so here for polynomial code, here we are written x raised to 0, x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, x raised to 4. Okay, so like this here we are written. Yes, so here x raised to 5, x raised to 4 plus x raised to 0, this one. So here x raised to 0 means 1. Yes, so here we are considering x raised to 0 means 1 raised to 0, so that is 1. So here we are written x raised to 5 plus x raised to 4 plus 1. Here m bits of frame corresponding to polynomial, so that's why we are writing m of x, and we are calculating checksum. We will see this technique with example, but before that we have a deep understanding how CRC is working. So it is a most powerful of redundancy checking technique. It is based on binary division. तो CRC टेक्निक में हमें बाइनरी डिवीजन ही करना है. ठीक है, कैसे वर्क करती हो? सो रिडंडेंसी बीट्स आर यूज्ड बाय CRC. They are derived by dividing the data unit by predetermined divisor. So remainder is CRC. CRC must have exactly one less bit than divisor. मतलब जो डिवीज़र में जितने बीट होते उससे एक बीट कम हम लेंगे, एंड जो वो बीट्स है वो हम एट द एंड ऑफ डेटा अपेंड कर देंगे. ठीक है, एंड देन वी आर डूइंग डिवीजन. ओके, so here one example with figure. It is shown that how CRC calculation is done. This is our data. Here appended code, then divisor, and whatever the remainder we are getting. 0 means data is accepted, non-zero means data is rejected. This is on a receiver side. What is on a sender side? Data plus whatever the bits are appended, divisor, same things, and but here remainder is also added. Yes, so divisor and what is our CRC value. Yes, so here CRC value is added to our data, and that value is going here. That value is divided by again divisor and whatever the remainder. जो भी remainder आता है, but अगर remainder 0 आया, it means that is error free frame.
अगर ज़ीरो नहीं आता है मतलब दैट इज़ नॉट एरर फ्री फ्रेम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिखा है दिस इज डिवीजर 1011, ये हमारा डेटा वर्ड है 1001, ठीक है। डिवीजन करना ये है 1001। रूल क्या है, जो डिवीज़र है, डिवीज़र जितने डिजिट का है उससे एक डिजिट हम कम लेंगे। मतलब ये 4 डिजिट का है तो हम यहाँ पे कितने डिजिट लेंगे, 3 डिजिट, ठीक है। और क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा डिवीज़र है वो 4 डिजिट का है तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 डिजिट ऐड करेंगे और वो क्या करने हैं, ज़ीरो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट है तो हम यहाँ पे 3 डिजिट ऐड करेंगे, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट ऐड कर दिए, वो क्या करने, कंपलसरी ज़ीरो ही ऐड करना है, ठीक है। अब हमें डिवीजन करना है। सो हियर यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें आएंगी, आइदर 1 आएगा या 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी डिवीजन है। तो ये जो नंबर है 1001, तो उससे ये नंबर बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो छोटा है, सॉरी यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 1 जा ये लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवीजन माइनस करना है। सो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। 1 माइनस 0 है तो भी 1 आएगा और 0 माइनस 1 भी 1 ही आएगा। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या मिला, 100। अब हम सॉरी यहाँ तक मिलेगा 10। अब हमें क्या किया, तो हमने एक ज़ीरो है वो नीचे रखा तो भी कितने 3 डिजिट आए, हमें कितना चाहिए, 4 डिजिट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और ज़ीरो है वो हमने क्या किया, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो एट ए टाइम हम दूसरा ज़ीरो ऐड करते हैं तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो। एक्चुअली ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आप ये करके यहाँ पे ऊपर ज़ीरो लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर से दिस वन जा दिस, सो 1011, 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, ठीक है। अब क्या करना है, 3 डिजिट मिला, ऊपर से एक और डिजिट हम नीचे लाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 1 1 0 और यहाँ पे है 0, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारा आया रिमाइंडर 110, ठीक है। ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, 110। तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम जो डेटा है उस डेटा के साथ हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। हमारा डेटा क्या है, हमारा डेटा है 1001, ठीक है। उसके अंदर हमने रिमाइंडर ऐड कर दिया तो ये हमारा बन गया कोड वर्ड, डेटा वर्ड प्लस रिमाइंडर विच इज़ इक्वल टू कोड वर्ड। तो ये हमारा बन गया कोड वर्ड। ये कोड वर्ड हम भेजेंगे रिसीवर को और रिसीवर भी सेम इसी टाइप का कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे रिसीवर ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो ये था रिमाइंडर, ये मिला तो ये पूरा इसने लिख दिया, ठीक है, कोड वर्ड बन गया 1011। जो पहले डिवीज़र था 1011, वही डिवीज़र से उन फिर से हम डिवीजन करेंगे। तो दिस वन जा दिस, ठीक है, 1 माइनस 1 0 1 0 एंड 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10। तो हम ऊपर से एक 1 यहाँ पे नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 101। 4 डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है तो उसी टाइम पे हम दूसरा डिजिट भी यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे, ठीक है, 1011, ठीक है। तो एट ए टाइम हम 2 डिजिट नीचे लाते हैं तो हमें यहाँ पे एक ज़ीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमने रख दिया, ठीक है। अब फिर से करेंगे दिस वन जा दिस, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह पे मतलब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है।
तो इस ज़ीरो को हम यहाँ ऊपर भी रखें तो भी चले, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, मतलब सेंडर ने जो फ्रेम सेंड की थी तो वो फ्रेम एरर फ्री फ्रेम है, ठीक है। अब यही चीज़ हम फिर से करेंगे। देखो यहाँ पे एक मिनट, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर कोई एक डिजिट चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे है हमारा कोड वर्ड क्या हुआ, यहाँ पे 10011110 ये सेंडर ने भेजा, बट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर ये 1 है वो 0 हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे रिसीवर कैलकुलेशन करेगा सेम, ठीक है। तो उस कैलकुलेशन में रिमाइंडर आएगा 011। एक्चुअली आंसर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिसीवर क्या करेगा, ये जो डेटा वर्ड है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। अब CRC है तो सिंपल यहाँ पे पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। हम x⁻�0 मतलब 1, x⁻1 है तो x⁻2, x⁻5, x⁻7 यहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ दिया है, क्या है उसको देखो यहाँ पे डीप में, कि सपोज हमारा कुछ डेटा डिवीज़र हमारा ऐसा है 10100111, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, मतलब अब देखो पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम डेटा को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट हमने x ले लिया, y z जो भी लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसको इक्वेशन की फॉर्म में हमारा जो डेटा है उसको यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया है, उसको बोलेंगे पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पे दिया है x⁻0, ठीक है, तो हो गया 1, x⁻1, ठीक है। तो उसका यहाँ पे 1 मतलब यहाँ पे ये कोफिशिएंट 1 हुआ, यहाँ पे x⁻0 मतलब ये, सॉरी x⁻2 मतलब ये वाला, ये x⁻3, ये x⁻4, x⁻5, x⁻6 एंड x⁻7, ठीक है। अब हमें कौन सा डेटा सिर्फ कंसीडर करना है कि जिसकी वैल्यू 1 आती है, ये वाली, सिर्फ ये नीचे वाली है वो डिस्कार्ड, मतलब जिसका यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है वो कंसीडर नहीं करना है, जिसका कोफिशिएंट 1 आता है वो लेना है, मतलब ये वाला 1, x⁻1, x⁻2 वाला, x⁻5 एंड x⁻7। तो ये है, इतनी वैल्यू है वो हमें कंसीडर करनी है। क्या याद रखना है, जिसका कोफिशिएंट 0 है वो हमें कंसीडर नहीं करना है, जिसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 मतलब जिसकी वैल्यू 1 है वो लेना है, जिसकी वैल्यू 0 है वो नहीं लेनी। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, x⁻0, x⁻1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। उसमें देखना है कि जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, वो ही लेना है, और उसका देखना है वो क्या है, तो x⁻7 तो वो लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा है x⁻7 प्लस x⁻5 प्लस x⁻2 प्लस x⁻1 बोले या सिर्फ x बोलो एंड प्लस 1, तो वो यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि CRC 8 है, CRC 10 है, ITU 16, ITU 32, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है। आपको एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाता है, पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन से आप कैसे CRC का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो ऐसा दिया जाता है।
अब यहाँ पे जो CRC के थ्रू यहाँ पे दिया है कि कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे जाते हैं कि यहाँ पे ये फ्रेम है, ये जनरेटर है, जो हमने देखा, जो कैलकुलेशन किया वही कैलकुलेशन है। जो डेटा है तो जो डेटा प्लस रिमाइंडर है वो सेंड किया, ठीक है। तो इसी तरह से डेटा सेंड और रिसीव होता है। बेनिफिट क्या है CRC के, तो बेनिफिट है कि पे डिटेक्शन ऑफ एनी सिंगल एरर, डिटेक्शन ऑफ डबल एरर, डिटेक्शन ऑफ ऑड नंबर एरर और डिटेक्शन ऑफ ऑल बर्स्ट एरर, ठीक है। इस सब का डिटेक्शन है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। CRC इम्प्लीमेंटेशन है तो शिफ्ट रजिस्टर सर्किट में एक्चुअली CRC का इम्प्लीमेंटेशन जो शिफ्ट रजिस्टर जो आते हैं, ठीक है, तो वो जो हमने देखा था 8086 रजिस्टर में शिफ्ट रजिस्टर था, तो उस शिफ्ट रजिस्टर की सर्किट है, तो उस सर्किट में हम CRC इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब CRC पोलिनोमियल कोड्स है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, प्रोसीजर है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मैसेज कुछ ऐसा है 1011, ठीक है, मतलब x रेज टू 0, x रेज टू 0, x रेज टू 1, x रेज टू 2 एंड x रेज टू 3। तो ये 0 है वो तो कंसिडर करना नहीं है, तो यहाँ पे x रेज टू 3 प्लस x रेज टू 1 प्लस 1, तो वो यहाँ पे हमें मिला। देखो यहाँ पे उसको एलेबरेट किया कि 1 प्लस 1 इंटू एक्स, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे x रेज टू 2 इंटू 0, ये है x रेज टू 3 इंटू 1, मतलब ये, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो और वैसे भी 0 हो जाने वाला है, तो x रेज टू 3 प्लस 0 प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो x रेज टू, अब सपोज हमारा कोड पोलिनोमियल ऐसा कुछ है x रेज टू 2 प्लस 1, तो इसका डिवीजन हमें इसके साथ करना है, ठीक है, x रेज टू 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसका डिवीजन हमें इसके साथ करना है, तो कैसे हम करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप है कि कंप्यूट s ऑफ x, ठीक है, r इज इक्वल टू 2, एस एक्स इज इक्वल टू दिस, मतलब ये जो है 1 2 3, ठीक है। जो हम इससे वैल्यू ये जो हमारा जो डेटा वर्ड है उसको हम डिवीज़र से डिवाइड करेंगे, तो वो 3 डिजिट का है। तो अगर डिवीज़र 3 डिजिट का है तो हम एक्स्ट्रा 2 बिट्स यहाँ पे मैसेज में अपेंड करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे किए 1011 एंड 00, ठीक है। तो वो जैसे हम CRC का कैलकुलेशन करते थे वैसे ही हमें करना है, बट ये जो मैसेज है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में हम लाएंगे, जो कोड पॉलिनोमियल है उसको भी इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे लाएंगे, और जैसे हम CRC का कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो सिंपली 101100 और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 1 1 जा दिस, ठीक है, 1 माइनस 1, तो यहाँ पे होगा 0 0, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर हम ऊपर से 1 यहाँ पे नीचे कैरी करेंगे, ठीक है। तो अब एक 1 हमने कैरी किया, ठीक है, एक कर सकते, दूसरा हम करेंगे, तो यहाँ पे हमें 0 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 10 नंबर हुआ, हमें 3 डिजिट चाहिए, तो हम तीसरा भी करेंगे, ठीक है, तो 100 हो, तो तीसरा भी हम करते, तो इसीलिए यहाँ पे दूसरी बार 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, तो यहाँ पे हो गया 100, तो 101 1 जा 101, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि वैल्यू नीचे ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है तो माइनस नहीं होगा। बाइनरी में जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आया 01, ठीक है। अब क्या करेंगे,
तो मॉड्यूलो 2 सब्सट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम एस एक्स। ठीक है, 0 1 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। एक्चुअली ये 0 1 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 0, और ये जो वैल्यू है वो एज इट इज़। ठीक है, तो ये चेक सम मैसेज हुआ, ये चेक सम मैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा डेटा है वो हम सेंड करेंगे, सीआरसी को डिकोड करेंगे। तो सीआरसी को हम डिकोड करते हैं तो हमने कुछ ऐसा मैसेज सेंड किया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इस मैसेज को हम 101 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 0। मतलब जो भी डेटा हमने सेंड किया है वो डेटा एरर फ्री डेटा है। ठीक है, जैसे हम सीआरसी का कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो इस तरह से सीआरसी का कैलकुलेशन होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।